Very much, sir. माननीय वित्त मंत्री जी, No. वित्त मंत्री जी, क्या बोलेंगे वो आप गाइड नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता सर, सच में even if I want to answer that whatever he said, leader Adhir Ranjan ji, whatever he mentioned, now I'm not clear what it was. Rashtrapati budget, please say it again. आप आपस में चर्चा मत करें। आप No, sorry sir. Each and every year, budget, supplementary, ठीक है, ठीक. even this year also, budget, discussion, presidential discussion, everything has been covered. So I will suggest you, Sir, माननीय thank you वित्त very मंत्री much, जी। Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity. This morning I had the opportunity to say somewhat many things which I could have said during the reply, but because the document has so many different things, I didn't want to leave everything for the reply. I said a few things in the morning. I thank you for that opportunity. Now, looking at the way in which many members have spoken, I will. चालू है माइक, चालू। आप तो बोले चालू है माइक। So, I try to answer some of the issues raised by the honorable members, but also focus on some of the critical aspects of the white paper. I repeat, sir, the white paper is a serious document with documentary evidence for everything that is said in it, and prepared with an intention of informing the House. प्लीज नो नो। Sir, it is a serious document. It is a document placed by this government. It is a document placed in this House so that the Honorable House is informed. This Honorable House is informed as to what effort it took and what effort of transparent ways in which. Sir, this is a bit too much, sir. It's a bit too much, sir. Every time all of us sit here and listen to each one of their speech, when I stand up to answer, when any minister stands up to answer, absolutely no etiquette. And even if you tell them, they don't seem to obey. Sir, I want to now. प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, Sir, this is a bit too much, sir. Please Even sit down, in spite please. of you, people seem to take their own turns to speak and have running commentaries without you allowing them. Sir, so this morning, I did say it and I repeat it now. This is a serious document. Clear. Oh my God. Please, sir. No, it cannot be like this, sir. You're asking them to sit. I'm not saying anything, and they don't want to sit. Every time honest answers are being given by speaker who raise it, they seem to be on their own to keep running commentaries going. They're not interested in my answer, but that will not stop me. I will still give it. Sir, therefore, Please. this document is a serious document which we want to place here, and it is placed with an intent that the House will be informed
of the 10-year literal dedicated effort to get this government work in such a way that the economy is back on rails and also progress in such a way that our aspirations can be met. Now, the two rails, I want to leave this as a strong thought, sir. The two rails on which we want this economy to move forward are: one, correct all the misgovernance which happened during the 10 years. Equally, just not focus on that, but also aim to do a lot of reforms and also push the economy in such a way, nudge the economy in such a way, where necessary, incentivize the economy in such a way that the movement forward is smoothened. So the two tracks which we have followed since 2014 are: one, to remove all the hurdles, all the misgovernance, and equally focus on reforms so that the economy can move forward. Now, Honorable Member N.K. Premchandran, in the morning as well, and now, repeated baseless allegations in this white paper. Not at all, sir. Documentary evidence is given. Supreme Court verdicts where they have come has been quoted. CAG reports have been quoted. Their own steps to cancel orders somewhere. For example, Antariksh Devas, where it was a fraudulent deal and they cancelled it themselves. Some of their own statements have all been quoted, nothing which is a figment of anybody's imagination. To constantly, therefore, to say it's baseless allegation from a learned member like N.K. Premchandran, it's surprising that a document being placed here and open for everybody's discussion, person like N.K. Premchandran, who I respect a lot, who I respect a lot, says it's baseless allegation? Not at all, sir. I challenge anyone who says this document has anything which is baseless. Everything is with evidence. Everything is with evidence. I challenge anyone who would say that we've kept a white paper which has no proof. So that is one thing. And therefore, why now? No, please. ये तरीका नहीं है. माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, सबको अवसर दिया, और फिर आप जब माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं तो बीच में बैठकर कमेंट्री करते हैं, उचित नहीं है. आपको पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त अवसर दिया. नो प्लीज, नो माननीय मंत्री जी. सर, why now? ये डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर अभी क्यों? इसके लिए मैं जवाब अभी भी दे रही हूं. सबको मालूम भी है, हमारे व्हाइट पेपर में भी वो है. माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2015-16 में ही एक मीडिया के इंटरव्यू में बोले थे. It's not as if I am standing here to say it now. Even in 15-16, Honorable Prime Minister made a statement that there is a lot of suggestions coming, that I should lay a white paper on the halat of the economy. But I'm not doing it because of national interest. I put the nation first. Because if the truth of the state of affairs of our economy was put out at that time, not one investor would have come to India. Our own citizens would have started feeling, what is happening in this country? All institutions have broken down. No proper decision making is happening. Sir, the total big ticket corruption, leave the small ones, big ticket corruption in their 10 years, big ticket corruption on an average was one at least each year. So, common people were really disillusioned. ये इस देश में क्या हो रहा है? So, हमारे अपने own citizens would have lost faith by the white paper. So we didn't want to
PM very clearly said we didn't want to bring it at that time. Now, why now? 10 years. 10 years of governance. 10 years of sincere effort to clear up the economy. 10 years of sincere effort to make sure that we are not going to stagnate because of the legacy which has been left behind. And therefore, we wanted to make sure that we do reforms. We also undertake everything which has to be done for cleaning up the system. And today, from the fragile 5 situation, we've reached the 5th biggest economy. And sooner we will be reaching the 3rd. Now with authority, where the economy is already stabilized and people are coming in, our foreign exchange reserve is improved, FDI is coming in, a lot of sovereign wealth funds are coming and having joint ventures, investment in greenfield projects. We had 10 years, which can therefore be periodically compared with those 10 years and with this 10 years, so that people are not going to say, you came in saying big things, but you know you can't implement, and therefore you are saying, like some of the state governments which are saying, having given false promises, they are not able to run their state government, put the blame on central government, come and protest in Jantar Mantar instead of being in their state and administering their state. So such things would have been easily accused on us at that time had the white paper been put then itself. We didn't do that. Responsibly, we took the challenge of getting everything sorted out. Now having sorted out, now having placed the economy in a proper position, we have, with documentary evidence, we put it out there, and that is why now the white paper is being put and nothing more. So, wo spasht main karna cha rahi hu, sir. Sir, therefore, now, in the morning, I took a lot of detailed explanation on coal scam and also on the way bank as an institutions were misused. Now, I also explained how, if you were to compare Commonwealth Games and compare it with the G20, how it was organized, what was the difference. Now, I would just focus myself on 3 issues where I will elaborate so that we all know. I'm sure you would have seen it in the white paper, but I want to explain on 3 issues. How national security was compromised in those 10 years, and how environment as a ministry had become a bottleneck, choke-a-block. Not one proposal could move, and the country's developmental programs all suffered because environment clearances were not obtainable, and the details of that. And finally, how the leadership failed the country. On these 3, I want to elaborate, after which I will obviously come to responding on individual members and their questions. Sir, national security. Critical shortage of ammunition and defense equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Manya Raksha Mantri is here. I'm saying it before him. What was the halat then? Bulletproof jackets were not available for our soldiers. वो सामने बंदूक लेकर हमारी एनिमी खड़े होते तो उनके पास उनके अपने प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं था. Night vision goggles were not available. So in the nights, they couldn't do a thing. In pitch dark, they were exposing themselves like sitting ducks. So that was the attention. Now, it's all right. You can always say, oh, no, that is the only case you're talking about. Look at that attitude on how they want to place national security. I'm reading a line. I'm quoting from somebody's words. I'll say who it is. I'm quoting, sir. Independent India has had a policy for many years that the best defense is not to develop our borders. An undeveloped border is safer than a developed border. So, many years, there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. Unquote. ये किसने कहा सर? तब की डिफेंस मिनिस्टर, तब की रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जी. Okay, sir?
दोबारा सर उनके बेटे हमारे पास है कि नहीं है वो मतलब नहीं है। रिकॉर्ड में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रही हूं। और डिफेंस सर एक ही, दिस इज नथिंग टू डू विद फादर सन ब्रदर, इट इज अ रक्षा मंत्री स्टेटमेंट। थैंक यू गजेंद्र शेखावत जी। सर A.K. Antony ji also stressed a number of times that his ministry has used up 92% of defense budget and major acquisitions have major acquisitions have to wait and there's no money. Inaugurating the defense expo in 2014 डिफेंस एक्सपो को इनॉग्रेट करते हुए रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं प्रगति मैदान में, कोट, देयर इज नो मनी लेफ्ट, ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स विल हैव टू वेट टिल 1 अप्रैल। मतलब गवर्नमेंट बदल रही है, उनको समझ में आ गया है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आप अप्रैल 1 को वेट करो। बॉर्डर में सोल्जर को मैसेज दे रहा है तब तक लड़ो कैसे भी, मगर मैं तो खरीदना मेरे से नहीं होगा। ये था उनके एटीट्यूड। सर इसके अलावा लिस्ट में बोल सकती हूं कितना करप्शन डिफेंस में हुआ करता था। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर स्कैम 2013 3,600 करोड़ का था। और CAG 2011 में कुछ और संदर्भ में डिफेंस का विषय में पुल्ड अप द आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिले इन बाइंग आर्टिलरी गन्स। सो लगातार हमारे डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ और टोटल इग्नोरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। करेक्ट मेशर्स हमारी तरफ से क्या हुआ? डिफेंस बजट हैज डबल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years. It was 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था, अभी 6.22 लाख करोड़ है 24-25 में, बढ़ गई डिफेंस बजट। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड्स एंड फॉर डिफेंस फोर्सेस इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस कैपिटल बजट इंक्रीज्ड फ्रॉम 86,741 crore 2013-14 में 86,000 crore था, अभी 1.72 लाख करोड़ है डिफेंस बजट इस साल। सर 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन बजट इज earmarked, ये मुख्य बिंदु है सर। 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन मतलब खरीदारी के लिए जो पैसा देते हैं उसमें 75% डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं है कि विदेश से इंपोर्ट करते रहो। उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स ले आए, उसके वजह से उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी प्रोक्योरमेंट, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट उधर से अभी ज्यादा हो रही है। लॉन्च ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस IDEX फ्रेमवर्क सपोर्ट्स इंडिजिनस MSMEs। सर इसके अलावा FDI लिमिट in defense production has been raised to 74%. All ordnance factory boards have been converted into 7 defense PSUs. सर गर्व की बात है, मेक इन इंडिया पुश के वजह से आज INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल्स, मेन बैटल टैंक अर्जुन, आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, ये सब भारत में उत्पादन हो रहा है सर। इसके अलावा महिला आज राफेल भी उड़ा रहे हैं, बॉर्डर में भी बंदूक लेकर खड़े हैं, महिला पूरे के पूरे डिफेंस में है। सर बार बार रोते थे HAL को क्या हुआ,
HAL को ऑर्डर नहीं दिया, जब एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया नहीं 10 साल में HAL को, हम कर रहे हैं HAL को बिजनेस 4 लाख करोड़ तक दिए। बहुत सारे वैरायटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन उधर होने वाले हैं, 4 लाख करोड़ किए दिए ऑर्डर्स। और HAL का नया फैक्ट्री है जो माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट किए, फाउंडेशन स्टोन 2006 में ले किए, वो HAL मॉडर्न तेजस फाइटर जेट्स को अभी इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं HAL। ये HAL है सर जिसके बारे में वो आंसू बहाते थे, एक ऑर्डर भी नहीं दिलवाया। हम इतने कर रहे हैं HAL के लिए। आत्मनिर्भर भारत का विषय यही है सर। डिफेंस का जब अच्छा खर्च होता है और उसका संभालते हैं ठीक से, नो टेररिस्ट अटैक हैपेंस इन द कंट्री। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और हाँ, चाइना के बारे में बोलती हूँ, चाइना के विषय आपको जरूर बोलना है सर। डिक्लाइन ऑफ मोर देन 52% इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म related violence, decline in 72% of security forces का death, decline of 68% in civilian deaths between 2014 to 23। So ये कंपेयर करके हम बोल रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी असर पड़ रहा है, क्योंकि डिफेंस के इक्विपमेंट का परचेस और सर इसीलिए वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन in 22-23 क्रॉस्ड 1 लाख करोड़। डिफेंस प्रोडक्शन का इस देश में जो हो रही है उसका वैल्यू 1 लाख करोड़ से अधिक हो रही है अभी। डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस देश में हो रही है। एक्सपोर्ट 85 कंट्रीज तक पहुंच रही है हमारे इक्विपमेंट्स। सर कांग्रेस का ग्लेयरिंग मिसमैनेजमेंट ऑफ डिफेंस इश्यू, शायद इसमें एक और विषय मैं जोड़ रही हूं। इतना डिफेंस का मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और है विषय, और कुछ और विषय क्या है हमें तो मालूम नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या 2008 में चाइना में जाकर के कुछ MOU दस्तखत हुआ? उसका विषय क्या है? उसका विषय क्या है? अब तक उस खुलासा क्यों नहीं हो रही? उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हो रही है? उसके वजह से डिफेंस में रोड नहीं बनाएंगे, बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं खरीदेंगे, बुलेट नहीं खरीदेंगे, आर्म फोर्सेस को छोड़ देंगे, पैसा नहीं है बोलेंगे। ये क्या, ये सब उसके कारण हो रहा है क्या? उसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहिए सर कांग्रेस को। सर रेलवेज के विषय बहुत है, मगर समय का लिमिटेशन है, इसीलिए जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। जयंती टैक्स के विषय में आ रही है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सर, एवरेज डिले in grant of environmental clearances increased from on an average 86 days होता था, वो जाकर के 316 दिन तक हुआ between 2011 to 2014। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कागज 1 साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 316 डेज तक वेट करके फिर भी नहीं मिलता था। 350 फाइल्स उनके पास पेंडिंग में वेट करती थी, मूव नहीं हुआ। 315 फाइल्स। हाँ, रविशंकर जी पूछ रहे हु वाज द मिनिस्टर। मैं बोलूंगी सर, वो एक कोटेशन से वो जवाब मिल जाएगा रविशंकर जी को, और वो कोटेशन उनका ही कोलीग है जो लॉ प्रैक्टिस करने वाले एक वेरी सीनियर लॉयर के कोर्ट है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका कोट पढ़ रही हूं सर।
रविशंकर जी का जवाब के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी बोले, द टर्म जयंती टैक्स was well known and understood by business circles. वही है उसका डेफिनेशन। जयंती टैक्स मतलब क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे हैं कि ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पूरे समझ है इसके ऊपर, आप समझ लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डेट भी बोल रही हूं, टाइम भी बोल रही हूं, सोर्स भी बोल रही हूं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्ट हुआ 31 जनवरी 2015 में। जयंती टैक्स का मतलब पूरे बिजनेस वर्ल्ड का समझ है भाई। आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कॉमन वर्ड है। आप क्या प्रश्न ऐसे तरीके से जवाब दिया गया, ये है उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस का घपला। इसके विषय में आइए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना बढ़ गए, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट पैदा किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे ठप पड़ गए, यूथ को इससे बहुत नुकसान हुआ, कोस्टल एरियाज में, माइनिंग एरियाज में काम ही नहीं आगे बढ़ा, और बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लाइक POSCO and Vedanta completely were affected. Image of India as a business destination went for a toss completely. सर, मैं ये बात बोलना चाहती हूं, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार, आंदोलन जीवी और भ्रष्टाचार जीवी की सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया। वो जिसिया था, जिसिया बोलते हैं ना सर एक जमाने में, ये जयंती टैक्स जसिया था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जसिया। आप दो पैसा फिर देंगे। ये जसिया जयंती टैक्स ये है व्हाइट पेपर में आ रहे विषय एनवायरनमेंट के ऊपर। सर, लाइसेंस परमिट राज, जसिया लाइसेंस परमिट राज वापस ले आए एनवायरनमेंट टैक्स के द्वारा। सो सर, हमने क्या किया? बैलेंस्ड प्रकृति एंड प्रगति, इसको बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। वी ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन सिस्टम ले आए, परिवेश ग्रीन क्लियरेंस के लिए जल्दी हो और समय पर हो। स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रीमलाइंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज। फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक स्टेट में गुजरात में पहला आया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उधर आया, फिर भी हम भी एनवायरमेंट के लिए प्रामुख्यता दी। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया प्रधानमंत्री जी ने 2015 में। पंचामृत एक्शन प्लान ले आए 2021 में। मिशन लाइफ ले आए 2022 में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले आए 2023 में। नमामि गंगे सक्सेसफुली अरेस्टेड पोल्यूशन इन अ होली रिवर। इतना सारे एनवायरनमेंट में क्लियर करते हैं सर। सर, रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर, PM कुसुम, उजाला, ये सब स्कीम्स भी एनवायरनमेंट के लिए ले आए। एवरेज टाइम, मैंने 316 डेज बोला। एवरेज टाइम फॉर क्लियरेंस, average time for approvals to be cleared at central level has been reduced to 70 days. 316 days और कुछ, उससे 70 days तक आ गए। Forest cover increased by 50,000 square kilometers. Number of protected areas 745 थे 2014 में, अभी 998 protected areas है। Number of community reserves 43 थे 2014 में, अभी 220 है। 12 बीचेस, भारत देश में 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।
मतलब स्पष्ट क्लीन गुड बीचेस, environmentally good beaches. Sir, globally, India stands fourth in renewable power, fourth in wind power, and fifth in solar power. आगे इतनी दूर तक हम आए हैं, 30-fold increase in solar energy capacity since 2014. Sir, also Guwahati, Assam के capital Guwahati rail station is the first solar powered railway station in India. Target of achieving 40% renewable capacity addition, which was a target set in COP21, fulfilled in 9 years ahead of time. मान लीजिए 2020 में करना है, 2011 में ही हमने फुलफिल कर दिया. उतना जल्दी 9 years ahead of schedule उसको 40% रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाना हमने अचीव कर दी. सर, ऐसे बहुत सारे हर एक घोटाले के ऊपर इतना विस्तार से बोल सकते हैं, मगर टाइम के कारण मैं लास्ट में आ रही हूँ लीडरशिप के विषय. हो ठीक है, थैंक यू सर. लीडरशिप के विषय में आ रहे हैं जो एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है. यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए का मिसमैनेजमेंट, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब का केंद्र बिंदु है लीडरशिप का प्रॉब्लम. रडरलेस, लीडरलेस. सर, माननीय सोनिया गांधी जी was super prime minister as the chairperson of the National Advisory Council, an extra constitutional and unaccountable person. Of course, sir, सुबह मैंने एसबीआई चेयरमैन के विषय बोले, आर.के. तलवार जी के विषय बोले, वो नहीं मेंशन, मगर कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, ये संदर्भ में उसको मैंने बोला. ऐसे ही ये मिसमैनेजमेंट और फ्रेजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है? हर एक घोटाला का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, मगर इन सब का कारण क्या है? मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लीडरशिप अगर सही है तो ऐसे हालात होता क्या? इसीलिए सर, मैं बात इसलिए बोल रही हूं, गवर्नेंस के ऊपर ये मेजर दबाव था, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको मिला. 710 फाइल्स एनएसी के बाद एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया. क्या वो कैबिनेट है? क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है? क्या वो स्टैंडिंग कमेटी है? क्यों उनके हाथ में जाना 710 फाइल्स? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है क्या? वो अनअकाउंटेबल पावर था, अनअकाउंटेबल, अनआंसरेबल पावर था. पार्लियामेंट में उसका जवाब देने का स्थान ही नहीं था. उनके पास क्यों 710 फाइल्स गया? ऐसे ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये गपले, साल में एक बड़ा टिकट गपला होता रहा. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पावर. सर, ऑल्सो आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी, हम सब रेस्पेक्ट करते हैं माननीय मनमोहन सिंह जी को, उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं. मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के पर्यटन में थे, इधर कांग्रेस के तब के शायद जनरल सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे. पुराना बात, 10 साल के पुराना बात भी अभी बोलने का आवश्यकता है. ऑर्डिनेंस को फाड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका, वो क्या मर्यादा नहीं है? वो अवमानना नहीं है प्राइम मिनिस्टर को? इंसल्टिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर. ये ऐसे घमंड और गर्वी, मतलब वेरी एरोगेंट, who did not care for his own prime minister. ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं आजकल, हमें लेक्चर दे रहे हैं. When
हिज ओन प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर विदेश में थे, वो ऑर्डिनेंस को फेंक के, तब कहां गया हमारे एनके प्रेमचंद्रन जी? बेसलेस हमें बोलते हैं एनके प्रेमचंद्रन जी, तब उठ करके बोलना था, अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर को क्यों इंसल्ट कर रहे हो, ये गलत है बोलने को। तब आरएसपी नहीं था, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो एनके प्रेमचंद्रन जी का, तब नहीं था, क्यों उठा करके पूछा नहीं? अभी हमें पूछ रहे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ग्रेट लेजिस्लेशंस हुआ, अभी उनका ऑल्टरनेटिव कुछ प्रपोजल के लिए बात कर रहे थे, उस समय अच्छा कानून हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मैं उसके विषय में आ रही हूं सर। इतने सारे अच्छा कानून बोल रहे हैं ना इनके प्रेमचंद्र, क्या एनएसी के द्वारा कानून आपको मंजूर है? एनएसी कौन है? एनएसी कौन सा बॉडी है? उसके द्वारा जब कानून आता है, एनके प्रेमचंद्रन जी को मंजूर है उसमें? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किचन कैबिनेट से वर्ष। ऐसे सेलेक्टिव मोरालिटी को हाईलाइट करने वाले से मैं विनम्रता से मांग रही हूं, प्लीज आपके हाई मॉरल ग्राउंड को इस पार भी उपयोग करो, उस पार भी उपयोग करो। एनएसी कानून बन सकता है, हम व्हाइट पेपर इधर रख नहीं सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट can't keep a white paper here. You had a kitchen cabinet से वर्ष, सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट आंदोलन जीवी बना रहे कानून, उसको मंजूर दे रही हो, वो अच्छा कानून बोल रही हो, वो तब आपको आपत्तिजनक नहीं माना? सो सर, I want to also say, sir, I want to say this. अभी हर विषय में बोलते हैं, आधार हमने ले आया, मनरेगा हमने ले आया, आधार यूआईडी पेमेंट हमारा है, इसलिए डीबीटी हो रही है, ये सब बोलते हैं ना सर, हर बार क्लेम करते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करो, हम भी अच्छे किए, रिकॉग्नाइज, हमें क्यों एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो बोलते हैं। मैं बोल रही हूं सर, सिर्फ यूआईडीआई के उदाहरण लेते हुए, वो उधर मंजूर नहीं था, हर डिपार्टमेंट में झगड़ा था, यूआईडीआई नो, ले आना नहीं है बोलने, ठीक है जी? हाँ मैं पढ़ रही हूँ, डोंट वरी, पढ़ रही हूँ। Oh yeah, I won't mislead the house. I'm not Congress. मिसलीड करने वाले हाउस को कांग्रेस से भाई, कॉपीराइट आपका है, पेटेंट एंड कॉपीराइट ऑन मिसलीडिंग इज योर्स सर। इकोनॉमिक टाइम्स तब का अप्रैल 17, 2012, इकोनॉमिक टाइम्स अप्रैल 17, 2012 उसका रिपोर्ट है सर। UIDIA Parent Planning Commission was rejecting its 15,000 crore funding proposal. प्लानिंग कमीशन तब का इनका प्रपोजल के लिए UIDA के लिए रिजेक्ट किया। फिर UIDA legitimacy and a parliamentary panel examining the legislation that gave UIDI legitimacy. सर आज सुबह बहुत सारे इधर भी सुना, कल राज्यसभा में भी सुना, आप कानून जल्दी में ले आते हो, कानून जल्दी में ले आ करके पास करवाते हो, हाउस जब ऑर्डर में नहीं है पास करवाते हो, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में आपको क्या आपत्ति है बोलते हैं ना सर, उसका देख लीजिए। A parliamentary panel examining a legislation that gave UIDI legitimacy was dismissing the project as one, within quote, conceptualized with no clarity of purpose. आधार हमारा है बोलने वाले उस समय बोले उसका पर्पस ही कुछ नहीं है सर। उसके बाद सर at least 3 central ministries तब के
namely food, civil supplies and rural development, and labor also, have reservations with real-time biometric authentication. Real-time biometric authentication के खिलाफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, फूड भी, सिविल सप्लाईज भी, रूरल डेवलपमेंट भी, लेबर भी, रिजर्वेशंस बोले नहीं करो, मगर आधार हमारा है। झगड़ा हो रही है उधर हर मिनिस्ट्री के आपस में। सर, दूसरा उस पेपर में रिपोर्ट हो रही है, आई डोंट सी, ये बात बोले कि कनेक्टिविटी इज अनरिलायबल, जैसे उनके पूर्व वित्त मंत्री भाषण बयान किया कि गांव में इंटरनेट होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी होगा क्या, उधर डिजिटल पेमेंट से क्या फायदा बोले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को हंसी मजाक उड़ाया कि ये क्या है, पेमेंट के ऊपर इतना बात कर रहे हो, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विलेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बोले हैं उनके पूर्व वित्त मंत्री। वैसे ही इधर भी बोले, और इधर बोले कनेक्टिविटी इज अनरिलायबल इन रूरल एरियाज, especially below gram panchayat level. So I don't see this changing for the next 10 years. 2012 में रिपोर्ट हो रही है कि अगले 10 साल तक ये बदलना होना असंभव है, इसलिए यूआईडीए, डिजिटल आधार वगैरह छोड़ दो। आज हमें बोल रहा गया कि आधार हमारा है, इंप्लीमेंट करने वाले हम हैं, स्केल अप करने वाले हम हैं। पूरे दुनिया में डीपीआई के ऊपर G20 में हमें बोला जाता है कि यू आर डूइंग इट राइट। आप इसको नकारा, आप इसको रिजेक्ट किए। सर, सीधा पॉइंट पे आती हूं। ये आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के वजह से आज कोविड के टाइम में भी हम डायरेक्टली बेनिफिशियर को पैसा भेज पाए, जो डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर पाए। और उससे सिर्फ कोविड के टाइम नहीं, आज डीबीटी जितनी भी चल रही है गवर्नमेंट के प्रोग्राम के वजह से, डीबीटी के वजह से, आधार ऑथेंटिकेटेड डीबीटी के वजह से 2.7 लाख करोड़ सरकार ने बचाया, सेविंग हुआ सरकार को। ये लीडरशिप का ताकत है, ये लीडरशिप का विजन है जो नहीं था यूपीए में। सर, और बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने ब्लैक मनी, सीबीआई, ईडी दुरुपयोग बोलते हैं ना सर। मैं डेटा देती हूं, पीएमएलए जो कानून को एनफोर्स करने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, ठीक है सर, 2005 से 2014 तक प्रोसिक्यूशन कितना हुआ सर उनके समय में? 102, मतलब उसको खैर ही नहीं किया। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्ट है, उसको एनफोर्स करने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। उसको मनी लॉन्ड्रिंग के काम को रोकने के लिए उस समय कंट्रोल करके रखे थे। नहीं आप चुप बैठो, मनी लॉन्ड्रिंग होते रहने चाहिए, आप क्यों एक्टिव हो रही है? ऐसे करके उसको क्या बोलते हैं, चिड़िया बंद पिंजरे में चिड़िया बंद कर रखा। ईडी को पूरे इंडिपेंडेंस जब देते हैं, आप अपने कानून के तहत जो भी करना है करो। मैंने बोला 102 केसेस ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट तक ले गए थे उनके टाइम में। जब ईडी को इंडिपेंडेंस दिया, आप अपने काम करो, पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, 1200 केसेस फाइल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हुआ। ये 10 साल आ रही सर, क्योंकि जल्दी में है
number of persons convicted, उनके समय पर 0। ठीक है, उनके समय पर कन्विक्शन 0, मगर हमने अभी हमें पूछ रहे हैं कितना कन्विक्शन हुआ भाई? बोल रहे हैं सर 58 कन्विक्शंस हुआ है। 58 कन्विक्शंस। हाँ, आपके 0 है रिकॉर्ड आउट ऑफ सर। व्हेन आई आंसर ए क्वेश्चन उनको लगता है सुई। कुछ और प्रश्न पूछते हैं बेटो, देती हूं जवाब, देती हूं सबका। सर अमाउंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मैं पूरे लिस्ट को नहीं पढ़ रही हूं। अमाउंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब जहां मनी लॉन्ड्रिंग के वजह से पैसा बनाया और बैंक को लूटा, उस पैसा को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। जब वो पैसा पकड़ में आता और बैंक असली ओनर को वो पैसा चली जाता है, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन उनके समय में कितना सर? मनी लॉन्ड्रिंग जहां हुआ है उससे पैसा निकाल करके कानूनन जिनको वो न्यायबद्ध तरीके से वापस करना है उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। उनका समय में 0। कोई एक पैसा वापस नहीं आया इस भारत देश के खजाने में। मगर रेस्टिट्यूशन हमारे समय में इस 10 साल में कितना आया सर? 10 भी नहीं, 9 साल में अप टू 23 कितना आया? 16,333 करोड़। 0 आपका। हमारा पैसा जारी है वापस जिनको जाना है। ओके सर, ठीक है। नाउ रेड कॉर्नर नोटिस, इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामला उठाए, मैं वो भी आंसर करती हूं। गलत करके बाहर भाग गए लोग, उनके समय पर जितने लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया उनके समय पर 0। हमारे समय पर 9 साल में 24 लोगों के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस है। ठीक है सर। और इनके समय पर पैसा लेकर के बैंक को चीट करके बाहर जो गए उनके ऊपर भी एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर्स पास करवाए, उनको भी वापस ले आएंगे। ऑर्डर तो हो गया है विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी के ऊपर ऑर्डर हो गया, उनको एक्स्ट्रेडिशन करने का ही बाकी है। ये इनके समय में 0 ले आए सर। दूसरा, इनके टाइम में कितने लोग को फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया? मतलब एक गुना इधर कर दिया, इकोनॉमिक ऑफेंस कर दिया, भागे। कम से कम उनको बोलना है, उनको नाम देना है कि कानून से भागने वाले, उनको हम फ्यूजिटिव बोलते हैं। फ्यूजिटिव इनके बगोड़ा, इनके काल में कितने घोषणा हुआ, कितने लोग के ऊपर बगोड़ा करके? 0। हमारे समय पर 12 लोग को फ्यूजिटिव हमने घोषणा कर चुके हैं। ये क्या है? क्या रिकॉर्ड है इनका? सर नंबर ऑफ FEO, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्स्ट्राडाइटेड, ये बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर हो गया है, विजय मल्ल्या आया है, नीरव मोदी आया गए, ऑर्डर पास हो गया, मगर हम एक्स्ट्राडाइट भी किए हैं लोग। इनके समय पर कितने लोग को एक्स्ट्राडाइट किया? 0। आपको मालूम है, आप ही बोल रही हो 0। जितने इनके घोटाले के 0 होते थे उतने 0 यहाँ। हाँ, हमने 4 लोग को ये ऑर्डर पास करवा करके एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। सो टोटल अमाउंट कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द FEOA, मतलब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके प्रॉपर्टी से कितना पैसा हमने वसूल किया? इनके समय पर कितना आदिर जी? 0। सही बात है, 0। हमारे टाइम में 906.74 करोड़ फ्यूजिटिव ऑफेंडर से वापस आए।
सर, सर, अरे जीरो से आप खुश है भाई, कम से कम हम खुश है 900 के ऊपर, आप जीरो के ऊपर खुश है। सर, एक इंपॉर्टेंट विषय है सर, बहुत सारे विषय बोलते हैं और हमें बोलते हैं कि पीडीएस में कितना दे रही हो, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट हम ही ले आए, है ना सर, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम ही ले आए। मैं याद दिलाना चाहती हूं इनको, 2013 में बाली में जाकर के WTO में एक मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में दस्तखत करके आए इनके कॉमर्स मिनिस्टर। विषय क्या था? भारत देश में पीडीएस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके किसान से ले करके बफर स्टॉक रख करके एफसीआई गोडाउन में पीडीएस के द्वारा गरीब के लिए वो पहुंचाने के लिए प्रोक्योर करते हैं। ये जा करके बाली में WTO में डिक्लेरेशन साइन करके आए, उसके मुताबिक इस देश में प्रोक्योरमेंट बंद होना था 2017 से, और बफर किसान से खरीदना नहीं है, प्रोक्योरमेंट करके बफर स्टॉक रखना नहीं है, उसको पीडीएस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। 2014 में मोदी जी आने के बाद कॉमर्स मिनिस्टर के नाते मैं गई नैरोबी में, झगड़ा करके परमानेंटली एक सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता ये अप्लाई नहीं होना चाहिए करके हमने ले आए वो कानून। ये भारत के किसान के हित को बेच दिया, भारत के कंज्यूमर का हित को बेच दिया। पीडीएस आज तक हम दे नहीं पाएंगे, पीडीएस हम दे नहीं सकेंगे इस देश में अगर वो बाली डिक्लेरेशन के अंतर्गत 2017 के बाद भारत देश का ये राइट पूरे के पूरे खत्म। वो था बाली डिक्लेरेशन, ये करके आए और इधर बोलते हैं फूड राइट के लिए हमने कानून बनाया। अरे विदेश में जाकर उस कानून को बेकार बना करके आए, उसके बाद आंसू बहा करके ये कानून बना रहे हो। बेल दिया हमारे किसान को, हमारे गरीब को, उनके हक जो अनाज के लिए खाने के लिए जो था उसको गिरवी रख कर आए हैं ये लोग, बात करते हैं आज। सर, मनीष तिवारी जी, सर मनीष तिवारी जी और वीरास्वामी कलानिधि जी, गिरीश चंद्रा जी, PM बशीर जी और S वेंकटेशन जी लेबर मार्केट के ऊपर बहुत सारे विषय उठाए। मनीष तिवारी जी थे अभी तक, मगर फिर भी मैं जवाब दे रही हूँ सर। लेबर मार्केट्स, मेरा जवाब उनके लिए मैं बोल रही हूँ सर। लेबर मार्केट्स हैव विटनेस्ड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, declining from 5.8% in 2018-19 to 3.2% in 22-23. Unemployment कम हो रही है। 2018-19 में 5.8% था, अभी वो 3.2%। Sir, unemployment rate particularly for graduates has also declined. 2017-18 में 17.2% था, अभी 13.4% in 22-23. Decline has been even sharper for female graduates, and their unemployment rate has declined from 27.5% to 20.6% over the same period. PLI स्कीम के बारे में हम बात करते हैं, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ सर। थैंक यू, यस श्योर, थैंक यू। PLI स्कीम सर 1.7 लाख को 1.07 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है, वो एक्चुअली 8.7 लाख करोड़ का प्रोडक्शन या सेल्स करता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 7 लाख है। सो PLI से डायरेक्टली 7 लाख लोगों को जॉब्स मिला। EPFO
ईयरली नेट पेरोल एडिशन, नया लोग जो ईपीएफओ में जोड़ रहे हैं, उसका नंबर ट्रिपल हो गया है। 61 लाख्स 2018-19 में, अभी 139 लाख्स 2022-23। इसका मतलब नया जो जॉब सीकर्स है, जॉब में आने के बाद रजिस्टर कर रहे हैं ईपीएफओ में। मनीष तिवारी जी का ये पॉइंट मैं जरूर एड्रेस करना चाहती हूँ। दूसरा एक और विषय, गवर्नमेंट जॉब्स 8,82,191 central government vacancies have been filled up in the last 9 years. 9 years का, हाँ वो बहुत अच्छा पॉइंट है। 9 years में 8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैंक्शनड पोस्ट है उसको वैकेंसी में ना रखते हुए भरपूर फिलअप कर रहे हैं। 8,82,191 विदाउट 1 पैसा रिश्वत, ट्रांसपेरेंटली रिक्रूटमेंट हुआ। सर, regional recruitment boards gave government jobs. Regional recruitment boards, इसको 8 लाख जब हम कहते हैं, हाँ only 8 lakhs, I'll say more. Regional recruitment boards gave government jobs to 4,30,592 youth between 2014 and 23. Government रोजगार मेला लॉन्च किए अक्टूबर 22 में, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट फॉर 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो रही है। 6.32 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच गया है उनके हाथ में। ये सब भी बिना रिश्वत, बिना घूम फिर करके इधर जाना उधर जाना, रिकमेंडेशन ले आना, बाय भतीजावाद बोलना, कुछ भी नहीं, इंटरव्यू तक नहीं। सर, विद अदर थिंग, इकोनॉमी में ऐसे माहौल पैदा हुआ है जिससे गिग इकोनॉमी हैज emerged as a noteworthy job generator. उसमें आज 77 लाख वर्कर्स, आज मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में नीति आयोग के रिपोर्ट बोलती है 77 लाख वर्कर्स आर इन गिग जॉब्स। सर, फिर मनीष तिवारी जी, वीरास्वामी जी और वीरास्वामी कलानिधि जी, गीता विश्वनाथन जी और सौगता रॉय जी सब पूछे इन्फ्लेशन के ऊपर। मैं बात बोलना चाह रही हूँ सर, 2004 से 2014 एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी वाज 8.2%। 10 years में एवरेज 8.2% था। लास्ट 3 years मतलब 11, 12, 13, 14 में द एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन वो 8.2% से उठकर 9.8% गया इन्फ्लेशन यूपीए के लास्ट 3-4 years में। ग्लोबल इन्फ्लेशन उस समय कितना था सर? एवरेज 4 to 5% ही था, मगर भारत देश में 9.8%। अंडर यूपीए रिटेल इन्फ्लेशन वाज मोर देन 9%। 28 महीना जो उनके कार्यकाल था उस समय, उसमें 22 पूरे महीना 9% से ज्यादा था इनके इन्फ्लेशन रेट 2012 से 14 तक। समटाइम्स 9% से भी ज्यादा हुआ। इनके एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5 साल में एवरेज डबल डिजिट में था। इनके रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसा है, और हमारे रिटेल इन्फ्लेशन ज्यादातर 5% में था, नेवर क्रॉस्ड 8%, और 8-9% और डबल डिजिट परसेंट में इन्फ्लेशन रखने वाले उनके समय में हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ऐसे हुआ, इन्फ्लेशन ऐसे हुआ। और मैंने पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में भी सरकार जितने कदम उठाए, मुख्यतः कुकिंग गैस सिलेंडर, मोर देन अबाउट 10 लाख लोगों को गैस सिलेंडर उज्ज्वला के जो द्वारा जिनको मिलता है उनको 300 रुपीस तक सब्सिडी देते हैं। 12 सिलेंडर तक भी वो ले, फिर भी सब्सिडी हर टाइम उनको 300 रुपीस मिलता है, उनके अकाउंट में मिल जाता है डायरेक्टली। सो डबल डिजिट इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट में रखने वाले
दूसरे से प्रश्न पूछना उचित नहीं है। सर, थैंक यू। आपको बाद में पिलाएंगे। सर, मैंने इस पॉइंट को बोलना चाहती थी, उससे मैं खत्म करूंगी। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज इज 3.84 सिलेंडर्स, मतलब एक साल में करीब 4 सिलेंडर लेते हैं गरीब उनके घर में उपयोग करने के लिए। प्रो रेटा बेसिस में बोल रही हूँ। 2016 से लेकर के more than 180 crore refills have been taken by Ujjwala beneficiaries. Each day, हर दिन उज्ज्वला families 11 लाख refills लेते हैं। हर दिन 11 लाख उज्ज्वला बेनिफिशियरी रीफिल के लिए आते हैं। हमें बोला जाता है उज्ज्वला में कोई आते नहीं है, आजकल रीफिल नहीं कर रहे हैं। आप गलत बयान बोल रही हो। नो, every day 11 lakh refills are being taken by Ujjwala beneficiaries. In the last financial year, sir, मान लीजिए एलपीजी कंजम्पशन नॉन उज्ज्वला सब इकट्ठा करके 100 सिलेंडर कंजम्पशन है, तो उसमें 20 उज्ज्वला सिलेंडर वाले हैं। इसीलिए सरकार उनके अपने स्कीम्स को सही तरह इंप्लीमेंट करती है और उसको मॉनिटर करती है। लीडरशिप स्पष्ट है कि भारत देश विकसित भारत पहुंचना है उस मंजिल तक 2047 के अंदर, और भारत में सबको साथ लेकर जाना है, सबके विकास के लिए काम करना है और अपने आप के लिए नहीं, देश को सामने टॉप में रख के जाना है। यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का गोल, ना कि परिवारवाद या देश के लूट करो और अपने आप को अच्छा रखो, देश बर्बाद में जाए परवाह नहीं। वो एटीट्यूड हमारा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इस देश आगे बढ़ेगा। माननीय सदस्यगण, अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि एन.के. प्रेमचंदन द्वारा पेश किए गए स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा पेश किए गए स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। हाँ सर। जो सदस्य इसके प्रस्ताव में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।